we all can enjoy this session hassle-free. Make sure your device is connected to mobile network or Wi-Fi with maximum internet speed. Do not start video or unmute in between the sessions. Use of headphone is recommended to get better audio clarity. Keep pen and notepad handy so that you can write down important information. Kindly cooperate. Thank you. Welcome Pradeep Gokhale, Pranav Gokhale sir. Hello. Sir, can you hear me? Hello Gokhale sir, can you hear me? Hello. Hello. Hello sir, can you hear me? Yes, yes, yes. Am I audible? Yeah. Yes, yes. Just give me a minute. I will check this Yeah. network connection. Okay, I think okay. there is some issue. Till then, I will give your introduction to all our participants. Okay. Pranav Gokhale sir is MA Sanskrit Vedanta Special. He has a lot of experience in this field. He is alumnus member in the Board of Studies of Ferguson College. He is member of syllabus committee of Cultural Olympiad held by MKCL, that is Maharashtra Knowledge Corporation Limited. He is lecturer in Upanishad lecture series held by Vedic Sanshothan Mandal, Pune. He is member of Sanskrit Vidya Parisamstha and Abhyankar Shastri Pathshala, Pune. He is trustee of Sanskrit Pracharini Sabha, Pune. He is working on editing Kanva Shatapath Brahmana of Shukla Experience, Vedic Sanshothan Mandal, and his critical edition of Taittiriya Brahman of Krishna. So let's move to our session to Gokhale sir. Hello. Hello, Am I sir. audible? Am I audible and visible? Not visible. Oh. Yes. Gokhale sir, Yes. will you please start your camera? Yes, yes. Trying to. Oh, we can't see you. Yes. There is network connection problem. I am trying to solve it. Hello, everyone is requested to please
Switch off your cameras, please. Please switch off your cameras. Yes. Now is it visible? Yeah, sir. Please continue. Yes. Sorry for the delay. It's okay, sir. First of all, thank you for those kind words about me. Very good morning to all, and regards. Shall we start? Yes, sir. Yes. First of all, I would like to request you all that I will prefer Hindi to explain this all subject, Upanishads and all the Indian philosophy, including Vedanta, Mimamsa, Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshika, and in Nastika tradition we have Buddha, Jain, and Charvaka. For hello, hello, hello. Yes, sir. आपका सुनाई दे रहा है, सर? हाँ, हाँ, हाँ. I was telling I would prefer Hindi to explain this subject. Yes. Meena ma'am is saying that I am not audible, so I am asking. Oh. You are perfectly audible. I think it's their personal internet problem. Please go ahead. Okay. And everyone is requested, please switch off your videos because it distracts. Please switch off your videos. Yeah. Yes. So all are comfortable with Hindi? Yes, sir, we are comfortable with Hindi. Yes, please go ahead. Please go ahead, sir. Thank you so much. तो हम उपनिषद इस विषय का विचार करने आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं। उपनिषद ये क्या है? उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग माना गया है। वैदिक वाङ्मय के 4 विभाग परंपरा में, संस्कृति में किए गए हैं। सबसे पहला जो विभाग है जिसको संहिता बोला जाता है, उस संहिता में मंत्रों का संग्रह निहित है। जैसे ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, दूसरे भी जैसे अथर्ववेद में भी संहिता है, पिप्पलाद। अब यहाँ एक एक वेद की शाखा है। जैसे ऋग्वेद की शाखाएं जैसे शाकल वाष्कल, यजुर्वेद की शाखाएं जैसे शुक्ल यजुर्वेद की अलग है, कृष्ण यजुर्वेद की अलग है। सामवेद की तो 1000 शाखाएं थी, सहस्रवर्तमा सामवेदः, ये भी प्रसिद्ध है। अब सामवेद की जो शाखाएं हैं उनमें फिर से एक एक शाखा का अपना अपना एक संहिता भाग है, एक ब्राह्मण भाग है, एक आरण्यक और उपनिषद भाग है। तो ऐसे 4 भागों में हर एक वेद का शाखा के आधार पर
विभाजन किया गया है। तो पहला संहिता भाग आ गया जिसमें मंत्रों का संकलन, मंत्रों का संग्रहण किया गया है। दूसरा जो भाग है वो ब्राह्मण भाग है। मंत्रों का संग्रह करने के पश्चात मंत्र तो मिल गए, मंत्र का तो संकलन हो गया, मात्र उसका उपयोग कहाँ करना है, एप्लीकेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन बेस या फिर उस मंत्रों के आधार पर किए जाने वाले जो यज्ञ है, उन यज्ञों का पूरा विधि विधान ये ब्राह्मण ग्रंथों में पाया जाता है। Sir, just a minute, I'm disturbing you. हाँ, Some people do not understand English, so you may please continue with some Hindi mix English. That will be better. ओके, ठीक है। वैदिक वाङ्मय के जो 4 प्रकार है उनके बारे में मैं कह रहा था। There are four parts in Vedic whole Vedic tradition. Those are Samhita, Brahmana, Aranyaka, and Upanishad. Samhita means collection of all Vedic mantras. Every Veda has his own Samhita. Rigveda Samhita, Yajurveda Samhita, Samaveda Samhita, Atharvaveda Samhita. Every Veda has its own shakhas, like Bashkala, Shakala of Rigveda, Taittiriya, Katha, Vajasaneyi of Yajurveda. So many shakhas and so many Vedic traditions are there. Now we are going towards Upanishad literature. What is Upanishad? The last part of Vedic Samhita or Vedic Brahman or Vedic Aranyaka is Upanishad. हिंदी में कहा जाए तो वेद के संहिता का या फिर ब्राह्मण का या फिर आरण्यक का जो अंतिम भाग है उसको उपनिषद ये नाम दिया गया है। आरण्यक क्या है? आरण्यक जिसमें वेदों के और यज्ञों के विषय में जो कोई तत्वज्ञान की, दर्शन के आधार पर की गई चर्चा है, उस चर्चा का अंतर्भाव किया गया है, वो आरण्यक में किया गया है। ये आरण्यक, इसका नाम आरण्यक क्यों है? जिसका पठन या अध्ययन केवल और केवल अरण्यों में जाकर किया जाता था, उसको कहा गया है आरण्यक। आरण्यकों का एक ऐसा महत्व है, इनमें जो विधि कहे गए हैं वो गांवों में या शहरों में जहां लोग रहते हैं, जहां आवास है, जहां किसी भी प्रकार का जनसंपर्क है, उस स्थान पर ये आरण्यक नहीं पढ़े जाते। इनका एक विशेष ऐसा माना जाता है, ये जहां पढ़े जाते हैं वहां आरण्य की उत्पत्ति हो जाती है। वहां का गांव, वहां की जनवास, वहां का पूरा जो जनपद है वो नष्ट हो सकता है। वहां का पूरा वातावरण ये वैराग्य से भर जाता है, ऐसी एक अवधारणा है। ये किन्हीं के मान्यताओं में ये अंधश्रद्धा है, पर ये धारणा है, ये ध्यान में रखना है, ऐसा माना गया है। संस्कृत में इसको एक फ्रेज है इसके विषय में, इट इज सेड उच्यते किल, so that the Aranyaka is the part of Veda in which end of yajna, end of
Veda means Samhita is included. It is said that where you read the Aranyaka, whole region, whole part will be jungle because of that chanting or studying Veda part. Aranyam karoti iti. The Veda part which contains the power of mantra, from which the whole region can get deserted. So it is called Aranyaka. अब उपनिषद एक एक संहिता, ब्राह्मण या आरण्यक का अंतिम भाग, जैसे सभी उपनिषदों के बारे में ऐसा कहा नहीं जा सकता कि केवल आरण्यक का अंतिम भाग ही उपनिषद है, केवल संहिता का अंतिम भाग ही उपनिषद है, केवल ब्राह्मण का ही अंतिम भाग उपनिषद है, ऐसा नहीं कहा जाता, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी का अभाव वहां देखा गया है। जैसे जिस शाखा में उपलब्धि है वैसे वो उपनिषद पढ़ा या जाना जाता है। हर एक शाखा का उपनिषद होता है, पर जैसे कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये यजुर्वेद की दो परंपराएं। शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है उसका नाम है वाजसनेयी संहिता, दूसरी एक शाखा है उसका नाम है काण्व शाखा। तो काण्व शाखा से जुड़ा भी एक है वो काण्व शाखीय संहिता, ऐसी काण्व संहिता अलग है। तो दोनों शाखाओं के संहिता भाग का अंतिम अध्याय 40वां अध्याय ये ईशावास्य उपनिषद कहलाया है, यानी कि एक ऐसा उपनिषद है जो वैदिक साहित्य में रहने वाली संहिता भाग का अंतिम भाग। दूसरे कुछ उपनिषद जैसे कि बृहदारण्यक नाम का उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद ये भी शुक्ल यजुर्वेद का ही है। ये उपनिषद शतपथ नाम का ब्राह्मण है। यहां ध्यान में रखना है, मैं ऐसा समझ के चल रहा हूं कि आप सभी वैदिक साहित्य से परिचित है, अवगत है, इस कारण थोड़ी आपको मंडूकप्लुति मालूम पड़ सकती है। मंडूकप्लुति यानी थोड़ा विषय को टटोल के आगे जाना, उसका विस्तार ना करना। पर हमारा जो मूल विषय उपनिषद है उसके बारे में, उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहे, इस कारण मैं आगे जा रहा हूं। तो मैं ऐसा गृहित धर के चल रहा हूं कि आप सब इस वैदिक वांग्मय से अवगत हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो विधि मंत्र विनियोग कहे गए हैं उनमें से शतपथ ब्राह्मण ये शुक्ल यजुर्वेद का प्रसिद्ध है। शुक्ल यजुर्वेद के इस ब्राह्मण ग्रंथ में आरण्यक भाग जो है, उस आरण्यक भाग का नाम बृहत आरण्यक है। बृहत यानी बड़ा। तो इस आरण्यक का अंतिम भाग, म्हणजे इसका अर्थ शतपथ ब्राह्मण के अंतिम भाग को आरण्यक कहा गया और उस आरण्यक के अंतिम भाग को उपनिषद माना गया। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग उपनिषद है। तैत्तिरीय नाम की एक कृष्ण यजुर्वेद की और एक शाखा है। उस शाखा का जो अंतिम भाग है यानी आरण्यक भाग, तैत्तिरीय आरण्यक नाम से प्रसिद्ध, उसके 7, 8, 9 ये तीन अध्याय तैत्तिरीय उपनिषद नाम से जाने गए। तो इस प्रकार जो मैंने कहा पहले, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, ये 3 ग्रंथों का अंतिम भाग उपनिषद कहलाया जाता है। किन्हीं शाखाओं के बारे में ऐसा भी है कि उनकी संहिताएं नहीं है, उनके ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, उनके आरण्यक उपलब्ध नहीं है, पर फिर भी उनकी उपनिषद प्राप्त हो जाती है। तो ये एक विशेष प्रणाली
वैदिक ट्रेडिशन में हम पाते हैं कि उपनिषद ज्यादा से ज्यादा, यहाँ तक जो वेद शाखाएं नाम मात्र अवशिष्ट है, जिनका सिर्फ नाम आज सुना जाता है, जैसे कि श्वेताश्वतर नाम की यजुर्वेद की शाखा है, उसका उपनिषद उपलब्ध है पर उसकी संहिता या ब्राह्मण या आरण्यक उपलब्ध नहीं। तो ये जो उपनिषद नाम का अंतिम भाग है वो हमेशा अंतिम ही रहेगा ऐसा नहीं। आज बाकी के भागों का, बाकी के विभागों का अभाव होने से भी उपनिषद केवल उन शाखाओं के स्मरण के रूप में, स्मृति के रूप में हम उनका अध्ययन कर पाते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ एक ही सब लोग अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, बहुत डिस्टरबेंस आता है, नहीं तो सब लोग अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, ठीक है। हाँ, जब आपको क्वेश्चन पूछना है एट द एंड ऑफ सेशन, तब आप अनम्यूट कीजिए, ठीक है। ओके प्रणव सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, थैंक यू। तो ये उपनिषद, अब उपनिषद इस शब्द का निर्वचन हम देखेंगे, एटिमोलॉजी देखेंगे। उप नी प्लस सद, सद इज मेन रूट, सद ये धातु है और उस धातु को दो प्रीफिक्स लगाए गए हैं। एक प्रीफिक्स है जिसको संस्कृत में या हिंदी में उपसर्ग नाम से जाना जाता है। उप और नी ये दोनों उपसर्ग है, प्रीफिक्सेस है। प्रीफिक्स का भी एक अलग अर्थ रहता है जिसके आधार पर उस धातु का मूल अर्थ प्रकर्ष से स्पष्ट किया जाता है या बदला जाता है। तो उप, इस उपसर्ग का अर्थ है निकट जाना, निकट, टू गो नियरर इज उप। उप का दूसरा अर्थ है सेकंड फ्रॉम द अल्टीमेट, नॉट फर्स्ट वन, जिसको सेमी हम कह सकते हैं। या फिर जैसे वाइज ऐसा शब्द उपयोग में लाया जाता है, वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्राइम मिनिस्टर, वाइस चीफ मिनिस्टर, ऐसे जो प्रयोग आते हैं उनमें जो उपांत्य, अंतिम जो सत्ता है उससे निकट, उससे निचली, पर बाकी सभी लोगों से, बाकी सभी सत्ताओं से ऊपर रहने वाली ये जो सत्ता है उसको उप कहते हैं। अब जो निकट है वो उप, इस उपसर्ग से कहा जाएगा। जो पूरी प्रणाली में दूसरे स्थान पर है उसको भी उप कहा जाएगा। या फिर उप का एक अर्थ उपशम यानी शांत कर देना है, वो भी इस उपसर्ग से लिया जा सकता है अर्थ। अब नी, ये जो प्रीफिक्स है इसका अर्थ देखेंगे। नी का अर्थ है निशेष, कंप्लीटली, होल थिंग। अब ये जो नी उपसर्ग है, नी का अर्थ पूरी तरह से, आपाततः, या फिर दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो जिसमें कोई भी अंश शेष नहीं रह जाता, पूरा सर्कल, पूरा भाग जिसमें कवर किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है, तो उसको कहते हैं नी। निशेष अर्थ में नी ये उपसर्ग प्रयुक्त होता है। तो ये हो गया उप प्लस नी। अब सद धातु का अर्थ हम देखेंगे। सद का
फर्स्ट लिटरल मीनिंग, शब्द में अर्थ, अभिधार्थ जिसको कहते हैं, वो अगर कहा जाए तो वो है बैठना, टू सिट। अब गुरु के निकट जाकर, उप का अर्थ है निकट, अपने गुरु के, आचार्य के पास जाकर पूरी तरह से मन लगाकर, आपका मन अगर पीछे छूट जाए, आप गुरु के पास चले गए हैं, फिजिकली तो आप उनके पास बैठे हैं, फिजिकली यू आर अपीयरिंग इन योर क्लास, बट होल सेंटर ऑफ योर थिंकिंग इज डिस्प्लेस्ड। आपका मन घर में अगर है, आपका शरीर यहां है, तो आप पूरी तरह से कक्षा में नहीं है। आप जब तन और मन दोनों की विचार से, दोनों के माध्यम से आप बैठ जाते हो गुरु के पास, तो वो उपनिषद है। यानी फर्स्ट लिटरल मीनिंग इज टू सिटिंग नेक्स्ट टू योर ट्यूटर और मेंटर और योर गुरु with whole your mind, intellect and ego centering on their अध्ययन। अब मैं हिंदी का आग्रह क्यों करता हूं, ये शायद आपको समझ में आएगा। जो ये ट्रेडिशन में परिभाषाएं प्रयुक्त होती हैं, उनके पैरेलल्स हमें इंग्लिश में नहीं मिलते। होता यूं है कि अब जैसे उपनिषद, यही शब्द ले लीजिए, ये विशेष संज्ञा है, इस कारण ये इंग्लिश में प्रयुक्त होने वाले इंग्लिश में वैसे की वैसे नहीं मिलेगी, इसलिए ये जो शब्द है वो वैसे का वैसा ही इंग्लिश में लाना पड़ेगा। वैसे ही बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जिनके पैरेलल्स आपको किसी भी विदेशी भाषा में नहीं प्राप्त होते। इस वजह से हिंदी ये थोड़ी सुबोध या सुलभ मालूम होती है। तो उपनिषद इस शब्द का अर्थ अपने गुरु के पास पूरी तरह से ध्यान लगाकर बैठ जाना, ये उपनिषद का पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ है सद धातु का गति, गति देना। अब जो ग्रंथ या जो वाङ्मय आपको निकट ले जाता है, पूरी तरह से उस विषय में आपको गति दे देता है। गति का अर्थ इंग्लिश में तो हो जाएगा स्पीड, या जिसको हम चलना कहते हैं, टू वॉक, टू पास। ये पूरी प्रक्रिया गति इस शब्द से इंग्लिश में कही जाएगी, पर प्रॉब्लम है यहां कि गति का अर्थ केवल जाना या वेग इतना ही नहीं है। गति के बहुत से अर्थ हैं, शेड्स जिसके कहे जा सकते हैं। अगर यहां कोई गणपति स्तोत्र पढ़ने वाला है, प्रणम्य शिरसा देवम नाम का जो नारद पुराण का गणपति स्तोत्र है, उस गणपति स्तोत्र की फलश्रुति में एक बहुत सुंदर चीज बताई गई है। मोक्षार्थी जो है, हर एक का कोई अपनी कामना से ये स्तोत्र पठन करता है। तो अगर कोई मोक्ष की कामना करने वाला ये स्तोत्र पढ़ने लगे तो गति उसको प्राप्त हो जाती है। वहां गति शब्द का जो प्रयोग है वो मोक्ष की समांतर अर्थ से किया गया है। गति का एक अर्थ मोक्ष है, लिबर्टी, उसका अंतिम ध्येय पूरी तरह से स्वतंत्रता पाना, किसी भी लौकिक या पारलौकिक बंधन से परे उठना, ये मोक्ष है, अल्टीमेट लिबर्टी है। तो उस लिबर्टी को पाना, उस अंतिम मोक्ष को पाना ही गति है। तो मोक्ष को उपलब्ध कराने वाले इस पुस्तक
को, इस ग्रंथ को, इस शास्त्र को सद गति अर्थ से, उप निकट अर्थ से, और नी पूरी तरह इस अर्थ से मोक्ष को मोक्ष के पास आपको ले जाएगा और पूरी तरह से मोक्ष में आपको डुबा देगा, यानी आपको मोक्ष की उपलब्धि हो जाएगी। यानी मोक्ष प्राप्त कराने वाली विद्या, ये उप नी प्लस सद इस रूप का उपनिषद का अर्थ है। दूसरा, अब जो सद धातु का दूसरा एक अर्थ है अवसादन, यानी काटना या नाश करना। विशरण ऐसा भी एक अर्थ है, काटना या नाश करना। जो अविद्या को पूरी तरह से काट देता है, अज्ञान को पूरी तरह से काट देता है, वो है उपनिषद। या अविद्या से प्राप्त होने वाले भव रोग का, संसार रूप रोग का जो निरसन कर देता है, वो है उपनिषद। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी ने जो उपनिषद भाष्य की रचना की है, उन उपनिषद भाष्यों में ये अर्थ कहा गया है गति विशरण अवसादन, जो मोक्ष के विषय में आपको गति दे देता है। अब मोक्ष में गति देना, इसमें भी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, स्टेप्स हैं। जैसे कि आप उठकर खड़े हो गए और मोक्ष की तरफ चले गए, ऐसा नहीं होता। जिनकी रुचि नहीं है मोक्ष में, उनके मन में मोक्ष के विषय में रुचि जगाना, जिनके मन में रुचि जगी है उनको प्रवृत्त करना सीखने के लिए, जो सीख रहे हैं उनको विशेष ज्ञान उपलब्ध कराना, और जो विशेष ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं उनको अंतिम आनंद संतोष तक पहुंचाना, ये पूरी गति की प्रक्रिया है। तो ये, और उसके बाद अविद्या का, संसार यानी प्रपंच के बंधन का निरसन करने वाली विद्या, ये भी है उपनिषद। इस तरह से उपनिषद इस शब्द के ऐसे बहुत से अर्थ निकाले गए। अब इनकी जो संख्या है, 108 उपनिषद माने गए हैं। मुक्ति को उपनिषद इसी एक नाम के उपनिषद में कहे गए। पर ये जो संख्या है, उनमें से प्राचीन कौन से है और नव्य उपनिषद कौन से है, ये थोड़ा विवाद का मुद्दा है। कुछ उपनिषद जो है वो प्राचीन माने गए हैं। प्राचीन यानी जिनकी रचना, अब ये ध्यान में यहां रखना है कि उपनिषद की रचना की गई है या वो स्वयं व्यक्त है। ये दो अवधारणाएं भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में स्वीकृत है। एक मत में पूरे श्रुतियां, पूरे वेद ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय इस शब्द का अर्थ हमें ध्यान में लेना है थोड़ा। यहां पुरुष इस शब्द से कोई भी मेल डोमिनेटेड समाज व्यवस्था के बारे में चर्चा नहीं कर रहा, ये ध्यान में रखना है। पुरुष इस शब्द की एटिमोलॉजी, निर्वचन ही इसकी सुचारू रूप से किया गया है। पूरी शेते इति पुरुषः। पुर में, पुर यानी नगर, सिटी, टाउनशिप, तो उसमें शेते यानी शेते का लिटरल मीनिंग है सोना। आप सोते हो कब? जब उस जगह पर रहते हो तभी वहां सोते हो। यानी कि जिस जो नगर की बात ये कर रहे हैं, उस नगर में जो रहते हैं, उस नगर में जो सोते हैं, तो उस नगर में रहने वाले, सोने वाले के लिए ये संज्ञा दी गई है पुरुष नाम की। अब ये नगर कौन सा है? अगर आपने कभी भगवत गीता पढ़ी सुनी होगी तो भगवत गीता में एक श्लोक आ जाता है, नवद्वारे पुरे देही। 9 द्वार जिसमें हैं, उस नगर को, पुरी को नवद्वारे पुरे,
नवद्वार यानी आपके शरीर में रहने वाले 9 इंद्रिय द्वार, 2 आंखें, 2 नथुनिया, 2 कानों के छिद्र, मुख, नाभि, उपस्थ और पायु। उपस्थ यानी जेनिटल और पायु ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। तो ये जो पूरे 9 द्वार है जहां से कुछ अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है, तो इन इंद्रियों को, इन माध्यमों को द्वार कहा गया है। और ये 9 द्वार जिस पुरी में लगे हैं, जिस नगर में है, वो नगरी, वो पुरी आपका शरीर है। तो उस शरीर में रहने वाला यानी जो आत्मा है, उस आत्मा को ही पुरुष संज्ञा से स्पष्ट किया गया है। यानी ध्यान में ये लेना है, स्त्री और पुरुष, मेल एंड फीमेल, लेडीज एंड जेंट्स, ये द्वंद्व, ये भेद पुरुष इस एक ही शब्द में उक्त है। स्त्री को भी उपनिषद की परिभाषा में उसमें निहित जीवात्मा के रूप में पुरुष ही कहा जाता है, स्त्री अलग नहीं है। अब यहाँ मॉडर्न थिंकिंग जो है उस हिसाब से तो स्त्री क्यों नहीं कहा गया, ये सोचना गलत है। उनकी परिभाषा है पुरुष, पुर में रहने वाला, देहरूप पुर में रहने वाला, इस वजह से वो पुरुष है। इसमें विवाद करने की कोई बात भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं। तो ये है पुरुष यानी आत्मा, प्राण, प्राण से भी परे आत्मा। तो मैं कह रहा था, ये जो पुरुष है, तो उस पुरुष यानी आत्मा के विषय में जो चर्चा की गई है, वो जिन प्राचीन उपनिषदों में की गई है, उन उपनिषदों की रचना आत्मा के माध्यम से की गई या कोई कर्ता उसका नहीं है। पुरुष का अर्थ है आत्मा, यानी जीवात्मा के माध्यम से व्यक्त हुआ जो वांग्मय है, लिटरेचर है, उसको कहेंगे पौरुषेय वांग्मय, पौरुषेय ग्रंथ। जीवात्मा के आधार से, यानी जिसका कोई ऑथर है, राइटर है, क्रिएटर है, उसको कहेंगे द लिटरेचर विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग इज पौरुषेय। अब इस पौरुषेय में ऐसी एक मान्यता है कि नहीं, ये आत्मा की माध्यम से व्यक्त हुआ है, पर ये आत्मा जो है वो जीवात्मा नहीं, परमात्मा है। तो ईश्वर से बना हुआ, ईश्वर से उत्पन्न हुआ, ईश्वर के निश्वास से प्रकट हुआ, ये वांग्मय है। इस कारण ये पौरुषेय है। तो पूरे वेद वांग्मय, ये उपनिषद पौरुषेय है। ये एक अवधारणा है समाज में निहित। और दूसरी अवधारणा है कि ये पूरे उपनिषद वेद ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय का अर्थ है जिसकी रचना किसी भी पुरुष विशेष ने नहीं की है, which is not authored by any human being or soul। अब यहां इनको अनंत अनादि कहा गया है। अनंत अनादि यानी जब से आत्मा था, परमात्मा था, परमात्मा के साथ ही ये पूरा ज्ञान, ये पूरी वेद राशि विद्यमान थी। इस कारण इस राशि को अनंत अनादि कहा गया है। सरल अर्थ, सरल शब्दों में कहा जाए तो जितना परमात्मा अनादि है, जैसे परमात्मा का कोई कर्ता नहीं है, परमात्मा ही करता है,
वैसे ही ये वेद वांग्मय किसी ने किए नहीं है, इनकी रचना किसी ने की नहीं है, बल्कि इन्होंने सभी की रचना की है, यानी इनको ही ईश्वर का स्वरूप माना गया है। तो वेद में निहित ये 4 भाग, ये पूरे अपौरुषेय है, ये दूसरी अवधारणा। तो अपौरुषेय पौरुषेय ये विचार हमने संक्षेप से यहां देखा। तो किन्हीं की मान्यताओं में ये उपनिषद किसी पुरुष विशेष की रचना है, किन्हीं के विचारों में ये रचना नहीं है, ये प्राचीनतम काल से केवल पास ऑन होते आया है, परंपरा से प्राप्त होता आ रहा है, गुरु ने शिष्य को दिया है। तो ऐसे ये उपनिषद है। मुक्ति को उपनिषद में 108 उपनिषदों की सूची है। उनमें से जो प्राचीन है वो प्राचीन आत्मा के बारे में चर्चा करते हैं, वेदांत के बारे में चर्चा करते हैं, और उसी प्रणाली में, उसी फॉर्मेट में कुछ उपनिषद पश्चात आनंतर्य से अगले समय में रचे गए हैं। अब ये इनकी रचना संप्रदायों ने की है, सांप्रदायिक आचार्यों ने की है, पर उनके नाम फिर से नहीं उपलब्ध हो जाते। तो ये जो उपनिषद बाद में रचे गए उनको नव्य उपनिषद कहा जाता है, यानी प्राचीन उपनिषद और नव्य उपनिषद, ये 2 विभाग हमें यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। तो प्राचीन उपनिषद, इनमें भी 18 उपनिषद प्राचीनतम कहे गए हैं। इनकी सूची, इनके विषय में एक श्लोक पठित किया जाता है। ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुकतित्तिरीहि ऐतरेयं च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। ईशावास्य, I am telling about 10 major Upanishads. There are 108 Upanishads listed in Muktikopanishad, from which there are 18 major Upanishads are accepted in Vedanta tradition. From those 18 Upanishads also, there are 10 or 11 major Upanishads on which commentary of Adya Shankaracharya is available. 10 Upanishads are Isha, Kena, Katha, Prashna, Mundaka, Mandukya, Taittiriya, Aitareya, Chandogya, Bruhadaranyaka. These are 10 major Upanishads. इन 10 उपनिषद पर भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी का भाष्य उपलब्ध है। वेदांत नाम का जो छठा दर्शन है, भारतीय संस्कृति में, सभ्यता में षड दर्शन माने गए हैं, जैसे कि सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, और मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहा गया है। तो ये षड दर्शनों में से अन्यतम एक दर्शन है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन ये उपनिषद पे ही आधारित है। वेदांत दर्शन में प्रस्थान त्रयी की कल्पना है। प्रस्थान त्रयी यानी 3 ऐसे शास्त्र जिनके आधार पर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जिनके आधार पर ये पूरा दर्शन, इस दर्शन की नींव रखी गई है, आधारशिला है, उसको प्रस्थान ये शब्द कहा गया है। तो ये प्रस्थान त्रयी कौन सी है? पहला प्रस्थान है श्रुति प्रस्थान जो उपनिषद है, दूसरा प्रस्थान है स्मृति प्रस्थान जो है गीता, और तीसरा प्रस्थान है व्यास सूत्र जिनको ब्रह्म सूत्र भी कहा गया है। तो जिसको मूल पढ़ना है तो वो पढ़े श्रुति प्रस्थान, यह उपनिषद,
दूसरा है स्मृति प्रस्थान जो है गीता, और तीसरा है न्याय प्रस्थान जो है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्रों में भी उपनिषद के बारे में ही चर्चा है, उपनिषदों का ही विचार है, और गीता में भी उपनिषदों का ही सार आया है। जैसे कि श्लोक आपको शायद सुना होगा आपने, गीता ध्यान में ये पढ़ा जाता है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। अब सभी उपनिषद गायें हैं, और उन गायों का दूध निकालकर भगवान गोपाल जी यानी गोपाल कृष्ण वो अर्जुन रूप बछड़े को माध्यम बनाकर इस पूरे जगत को दे रहे हैं। तो गीता सार है इन उपनिषद का, इसी कारण तो गीता को भी उपनिषद कहा गया है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, यानी एक रूप में गीता भी उपनिषद का ही एक्सटेंशन है, जिसको संस्कृत में उपब्रूहण ये शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो ये गीता भी उपनिषद का ही अनुसंधान करती है, उसका ही अनुगमन करती है। तो एक तरह से सबका मूल स्रोत ये उपनिषद है। तो उन उपनिषदों में वेदांत दर्शन, इसकी पूरी नींव इन उपनिषदों में है। तो वेदांत संप्रदाय के 5 आचार्य प्रसिद्ध है। वेदांत में 5 संप्रदाय है। 5 संप्रदायों में सबसे पहला संप्रदाय आद्य शंकराचार्य जी का है, जो केवल अद्वैत रूप में विख्यात है। दूसरा संप्रदाय रामानुजाचार्य जी का है, जो विशिष्टाद्वैत नाम से प्रख्यात है। तीसरा संप्रदाय मध्वाचार्य जी का संप्रदाय है, जो द्वैत संप्रदाय है। चौथा निम्बार्काचार्य जी का द्वैताद्वैत नाम से विख्यात है। और अंतिम वल्लभाचार्य जी का विशुद्ध अद्वैत नाम से प्रख्यात है। तो इन सभी आचार्यों ने, वेदांतों के आचार्यों ने उपनिषदों पर भाष्यों की रचना की है। उनमें से शंकराचार्य जी की उपनिषद भाष्य उपलब्ध हो जाते हैं, बाकी अन्य आचार्यों के सभी के भाष्य उपलब्ध नहीं है। किन्हीं आचार्यों ने केवल एक ही उपनिषद पर भाष्य की रचना की है, किन्हीं ने की ही नहीं है, उनके शिष्यों ने की है। जैसे रामानुजाचार्य जी का उपनिषद भाष्य नहीं है, उनके संप्रदाय में विद्यमान उत्तरवर्ती आचार्य रंग रामानुजाचार्य जी है, उनके उपनिषद भाष्य है। पर एक बेसिक एलिजिबिलिटी आचार्य होने की यह है कि जो उपनिषदों पर भाष्य रचना करेगा वो वेदांत का आचार्य कहलाएगा। ये वेदांत कल्पना जो है, वेदांत दर्शन में प्रस्थान के रूप में उपनिषद की मान्यता होने से ये उपनिषद जो इन आचार्यों द्वारा भाष्यांकित किए गए हैं वो मेजर उपनिषद माने गए, मुख्य रूप से स्वीकारे गए हैं, और ये 10 उपनिषद है। अब यहाँ 1-2 कमेंट्स दिख रही हैं कि प्लीज रिपीट, थोड़ा फिर से रिपीट कर देता हूं। 10 उपनिषद मुख्य रूप से स्वीकृत है। 10 उपनिषद मुख्य क्यों माने गए हैं? जिन पर वेदांत आचार्यों ने भाष्यों की रचना की है, जिन पर भाष्य उपलब्ध है वेदांत आचार्यों के, उनको मुख्य रूप में स्वीकारा गया है। और जिनके ऊपर भाष्य की रचना नहीं की गई है, उनको मुख्य रूप में अंतर्भूत नहीं किया गया। तो ये 10 उपनिषद कौन कौन से है उसकी कारिका मैंने बताई थी, वो रिपीट कर देता हूं और नाम कहता हूं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। श्लोक ऐसा है
ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तैत्तिरिः ऐतरेयं च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। ये कारिका मुक्तिकोपनिषद में आती है। I am repeating this in English. There are 10 major Upanishads. The criteria of major Upanishad is just on which Upanishad there is commentary of any Vedanta Acharya is available. That Upanishad is included in major Upanishad criteria. 10 major Upanishads are, as per I said, Ishakena Katha Prashna. We can't translate them because of their name. अब ये जो 10 उपनिषद है उनसे परे और 8 उपनिषद कहे गए, जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद है। श्वेताश्वतर उपनिषद पर भी शंकराचार्य जी का भाष्य है ऐसी मान्यता है, पर उसका अगर अध्ययन किया जाए तो वो शंकराचार्य जी के नाम पर प्रक्षिप्त है, वो शंकराचार्य जी का नहीं है। और भी उपनिषद जैसे कौशित की उपनिषद है, मैत्रायणी उपनिषद है, आरुणिकोपनिषद है, छागलेय उपनिषद है, ऐसे बहुत उपनिषद है। 18 उपनिषद उनमें एक वर्ग में, वेदांत के वर्ग में किए जाते हैं। अब नव्य उपनिषद क्या है? शायद आप में से कुछ लोग उसके बारे में जानते होंगे। अगर गणेश जी की आप उपासना करते हो तो उस उपासना में गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ा जाता है। तो गणपति अथर्वशीर्ष ये भी एक प्रकार का उपनिषद ही है। अथर्वशीर्ष, अथर्ववेद का शीर्ष भाग जिस उपनिषद में है उसको कहेंगे अथर्वशीर्ष। तो अथर्वशीर्ष भी उपनिषद ही है। तो देवताओं की उपासना के बारे में विशेष चर्चा जिस उपनिषद में है उसको नव्य उपनिषद की क्राइटेरिया में बिठाया गया है। तो देवता यानी शिव है, जैसे शिव अथर्वशीर्ष है, विष्णु या नारायण अथर्वशीर्ष है, देवी अथर्वशीर्ष है। ये सभी देवताओं के विषय में, देवता की उपासना के विषय में ग्रथित उपनिषद होने से ये सभी नव्य उपनिषद है। और इनमें जो सांप्रदायिक विचार है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो केवल नव्य उपनिषद है इस कारण वो उनका ध्यान, उनके तरफ ध्यान नहीं देना है, उनका अध्ययन नहीं करना है, ऐसी बात नहीं है। पर काल की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से वो थोड़े लेटर है, ग्रथित है, इस कारण वो नव्य कहलाए। दूसरे इनमें कुछ प्रकार है योग विषय के उपनिषद, जैसे तेजो बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद। ये जो उपनिषद है वो योग के विषय में है। तो शाक्त, शैव, वैष्णव, गाणपत्य इस प्रकार के सांप्रदायिक उपनिषद, योग के उपनिषद, वेदांत के उपनिषद, तंत्र यानी जिनमें तंत्र और मंत्र का विधान किया गया है, जैसे वनदुर्गोपनिषद है या हनुमद लांगुलोपनिषद है, इनमें बहुत से मंत्र आए हैं। तो तंत्र, योग, भक्ति, इन विषयों का ग्रथन इन उपनिषदों में पाया जाता है। उनमें से वेदांत के ज्ञान मार्ग के प्रकाशक जो प्राचीन उपनिषद है वो 10 या 18 है, और बाकी अगले पूरे उपनिषद ये नव्य उपनिषद की वर्ग में गणित हो जाते हैं। तो ये हो गए उपनिषद। ये केवल एक्सटर्नल थिंकिंग है, हम अभी उपनिषद की गहराई में नहीं उतरने वाले। कल से हम एक एक उपनिषद में क्या आया है, विशेष रूप से यहाँ 10 उपनिषद पर ही चर्चा होगी। नव्य उपनिषद है वो आनुषंगिक तौर पर, जैसे बीच बीच में अगर संदर्भ आ जाए तो उनकी चर्चा हम यथासंभव करेंगे। तो ये हो गया उपनिषद इस शब्द का
एक एक्सटर्नल मीनिंग। अब उपनिषद के जो फॉर्मेट्स है, उनका जो प्रारूप है, उपनिषद में जो तत्व चर्चा की गई है, उपनिषद में जो विषय विवरण प्रस्तुत होता है, जो ब्रह्म के विषय में चर्चा होती रहती है, वो चर्चा किस रूप में की गई है। तो उन चर्चाओं के कुछ बेसिक फॉर्मेट्स है। इन फॉर्मेट्स में 10 फॉर्मेट्स ये हम देख सकते हैं। यानी कि उपनिषद की पद्धति, उपनिषद में जिस पद्धति से वो ब्रह्म चर्चा, तत्व चर्चा प्रस्तुत की गई है, उस पद्धति का विचार करना यहां संगत है। तो पहली जो पद्धति है वो एनिग्मेटिक मेथड है, जिसको हम उपमा पद्धति ये हिंदी में कहेंगे। एनिग्मेटिक मेथड इज फर्स्ट वन इन उपनिषद फॉर्मेट। उपनिषदों में उपमा के माध्यम से ब्रह्म या परम तत्व की चर्चा है। ब्रह्म कैसा है? तो आकाश जैसा ब्रह्म है। ब्रह्म आकाश नहीं हो सकता। आकाश तो एक तत्व है और सभी तत्वों से परे इन सभी तत्वों का कर्ता आत्मा है। इस कारण आत्मा आकाश नहीं है, पर आप आत्मा को नहीं देख पाते, पर आकाश को देख पाते हैं। इस कारण जो आप देख सकते हो, उस प्रत्यक्ष पदार्थ की उपमा से उसके आधार पर अदृश्य होने वाले, अप्रत्यक्ष रहने वाले उस आत्मा का चिंतन या उसका ज्ञान कराना, ये उपमा पद्धति, एनिग्मेटिक मेथड है। तो आकाशम आकाशस्तल्लिंगा, खम ब्रह्म ऐसा वचन है। क यानी जल, जल ही ब्रह्म है, आकाश ही ब्रह्म है, अग्नि ही ब्रह्म है। इस रूप से अग्नि की उपमा, आकाश की उपमा या जल की उपमा देकर ब्रह्म वस्तु का, आत्म वस्तु का विधान किया गया। तो ये है एनिग्मेटिक मेथड। दूसरी किसी उपनिषद में जो एक मेथड प्रस्तुत की गई है वो है एफोरिस्टिक मेथड, जिसको सूत्र पद्धति भी कहा गया है। एफोरिज्म है सूत्र। जैसे तज्जलानीति उपासित, ये एक सूत्र है। इसका अगर विघटन ना किया जाए, इसका विश्लेषण ना किया जाए, तो आपको इससे कुछ अर्थ प्राप्त नहीं हो सकता। तज्जलानीति उपासित। अब तज्जलानीति क्या है? ये एक वाक्य है छांदोग्य का। तत् तज्जान तल्लान इति उपासित, ऐसा इसका विश्लेषण है। तज्जान यानी that matter which is generated from it or that means that ultimate reality. J means generating, L means dissolving, लय, तस्मिन् जायते इति तज्जान, उसमें उत्पन्न हो जाता है। ब्रह्म में, आत्मा में ही ये पूरा जग उत्पन्न हो जाता है और उसी में लीन हो जाता है। तो ये पूरा विश्व जिसमें उत्पन्न हो जाता है और उसमें लय पा जाता है, उसकी उपासना करो। तज्जान तल्लान इति उपासित, ऐसे सूत्र आ जाते हैं। जैसे महावाक्य, ये भी एक प्रकार से सूत्र है। तत्वमसि, ये छांदोग्य उपनिषद या सामवेद का महावाक्य है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ऋग्वेद का महावाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि, ये यजुर्वेद का बृहदारण्यक का महावाक्य है। और अयम आत्मा ब्रह्म, ये मुंडकोपनिषद का या अथर्ववेद का महावाक्य है। तो ये 4 वेदों के महावाक्य जो इन उपनिषदों में पाए जाते हैं, वो भी एक प्रकार से सूत्र है। तो ब्रह्म के विषय में चर्चा सूत्र रूप से, एफोरिज्म
के माध्यम से की गई है। तो ये एफोरिस्टिक मेथड, सूत्र पद्धति, ये दूसरी है। तीसरी पद्धति एटिमोलॉजिकल मेथड है। एटिमोलॉजी यानी व्युत्पत्ति, निर्वचन करना। जैसे कि किसी भी शब्द का निर्वचन करते जाना है और अंतिम छोर उस आत्मा तक पहुंचा जाता है। अब एक शब्द है वामन। वामन का अर्थ है जो जिसकी ऊंचाई या जिसका कद बहुत बड़ा नहीं है, वो इंग्लिश में जिसको डॉर्व्स कहते हैं, मराठी में बुटका कहते हैं, जो ज्यादा कद वाला नहीं है उसको वामन कहा जाता है। पर पुराणों में भगवान विष्णु का अवतार वामन है, इस कारण इस शब्द का पौराणिक अर्थ विष्णु का अवतार विशेष ये भी हो जाता है। पर जब उपनिषदों में वामन शब्द आ जाता है तो उस वामन का अर्थ कठोपनिषद में आता है, मध्ये तिष्ठति वामनः। वामन, हृदय में जिसका वास है। हृदय रूप आकाश में अपना जो हृदय है, हर एक का हृदय, उसमें स्पेस रहती है और उस स्पेस का परिमाण हर एक के अंगूठे जितना रहता है। तो जिसकी कद, जिसका परिमाण अंगूठे इतना है, उसको वामन कहा गया है। तो एक प्रकार से हर एक के हृदय में विद्यमान रहने वाला आत्मा ही वामन है। इस तरह से एटिमोलॉजी के आधार पर ब्रह्म की आत्मा की चर्चा, ये एक मेथड उपनिषदों में प्रयुक्त की गई है। अगली जो मेथड है वो मिथिकल मेथड है, जिसको हम पुरा कथा या पुराण कथा कह सकते हैं। कथाओं के माध्यम से, जैसे कि छांदोग्य और बृहदारण्यक या केनोपनिषद में हेमवती, उमा और इंद्र का संवाद है। या फिर छांदोग्य उपनिषद में तो बहुत कथाएं हैं, बृहदारण्यक में भी मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य, जनक, इनके संवाद है। तो इनकी कथाओं के माध्यम से, अब जैसे कि गीता भी एक कथा है, गीता में कृष्ण और अर्जुन इनका संवाद है, पर उनका संवाद पूरी ब्रह्म चर्चा है, तत्व चर्चा है। तो इस कथा के माध्यम से वो चर्चा, वो ज्ञान प्रस्तुत करना, ये एक उपनिषद की मेथड है, मिथिकल मेथड या पुराकथात्मक पद्धति कहा जाता है। अगली जो मेथड है वो वॉइस इज क्रैकिंग। I have got comment from, is it so? Voice is not clear. Is it so? Yes. Hello. क्लियर है सर। Oh. हाँ, maybe some disturbance, that's why. Yes. Okay, please continue. तो अगली मेथड है एनालॉजिकल मेथड, जिसको सादृश्य पद्धति कहते हैं। सादृश्य पद्धति यानी जो सादृश्य है, सधर्मिता है, जो ब्रह्म और अन्य पदार्थों में सादृश्य, ये उपमा के ही निकट जाने वाली पद्धति है। उपमा सादृश्य पे आधारित रहती है। तो ब्रह्म में जो गुण है, क्वालिटीज है, वो दूसरे पदार्थ में पाने से जो सादृश्य, साधर्म्य है, उसके आधार पर उस तत्व का व्याख्यान करना, ये एक मेथड। अगली मेथड है संवाद पद्धति, जिसको डायलेक्टिक मेथड भी कहा जा सकता है। डायलेक्टिक मेथड में संवाद है गुरु का शिष्य से। जैसे प्रश्नोपनिषद में पिप्पलाद ऋषि का 6 शिष्यों से किया गया संवाद, ये डायलेक्टिक मेथड है। अगली पद्धति है समन्वय पद्धति।
समन्वय पद्धति को ही सिंथेटिक मेथड कहते हैं। सिंथेटिक क्यों? क्योंकि जो भी विचारधाराएं हैं उनका समन्वय करके, जैसे कि कोई उपास्य देवता है, उस देवता को ही ब्रह्म कहना, आत्मा कहना, इंद्र ही ब्रह्म है, अग्नि ही ब्रह्म है, यम ही ब्रह्म है। तो इस प्रकार से जो भेद होता है एक एक देवता की उपासना में, तो उन सभी भेदों का समन्वय कर कर एक ब्रह्मवाद प्रस्तुत करना, ये एक मेथड है। अगली पद्धति है आत्मगत भाषण पद्धति, जिसको मोनोलॉग, ड्रामेटर्जी में आपको शायद सुना होगा आपने, मोनोलॉग रहता है, अपने आप से बातें करना। तो जब कोई वो ज्ञानी उस समाधि के परमोच्च अवस्था में चला जाता है, सहज समाधि में रहता है, तो वो अपने आप से संभाषण करना शुरू कर देता है, मोनोलॉग शुरू हो जाता है। तो सोहम है या अहम ब्रह्मास्मि है, तो ये आत्मगत भाषण पद्धति है। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में जो ब्रह्मानंद वल्ली है, उसमें एक आता है कि अन्नोहम अहम अन्नोहम अहम अन्नमहम, अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नादः, मैं अन्न हूं, अन्नमहम अन्नमहम, मैं अन्न हूं, मैं अन्नाद हूं, खाना भी मैं हूं और खाने वाला भी मैं हूं। तो ये एक प्रकार से आत्मगत भाषण पद्धति, मोनोलॉजिक मेथड, ये यहां कही गई है। अगली मेथड है एडहॉक मेथड, जिसको हिंदी में अगर कहा जाए तो समय सूचकता, समय सूचक पद्धति, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड में धक्का दिया जाता है। गुरु जो है वो शिष्य के प्रश्न को, शिष्य की धारणा को धक्का पहुंचाता है। जो भी प्रस्तुत विषय है, उस प्रस्तुत विषय का मोड़ वो ब्रह्म की तरफ, आत्मा की तरफ कर देता है। जैसे कि मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का संवाद बृहदारण्यक में आता है। मैत्रेयी पूछ रही है, याज्ञवल्क्य सब छोड़ छाड़ कर सन्यास लेके चले जा रहे हैं, तो मैत्रेयी पूछ रही है, आपको ऐसा कौन सा धन मिल गया है कि जिस कारण ये भौतिकता आप छोड़ रहे हो। तो ये पूरा संवाद पहले तो है आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, इस तत्व से। तो जो कुछ प्रिय लगता है वो आत्मा के कारण लगता है, आत्मा ही प्रेयस और श्रेयस का कारण है। और इस तरह से इस चर्चा को ब्रह्म चर्चा में मोड़ा गया है, रूपांतरित किया गया है। तो ये एक प्रकार से एडहॉक मेथड है, समय सूचक पद्धति है। और अंतिम जो पद्धति है वो प्रतिगामी, प्रातिगामिक, जिसको रिग्रेसिव मेथड भी कहा जाता है। जैसे बृहदारण्यक में अजात शत्रु और गार्ग्य का संवाद है। गार्ग्य एक ऋषि है और वो राजा की तरफ राजा के दरबार में जाता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश देता हूं। तो और कहने लगता है, सूर्य ही ब्रह्म है, सोम ही ब्रह्म है। तो सूर्य ब्रह्म नहीं है, सोम ब्रह्म नहीं है। इस प्रकार से जो मेथड सादृश्य और उपमा में प्रस्तुत की गई है, जो ज्ञात है उस ज्ञात पदार्थ से अज्ञात का ज्ञान कराना, तो इससे बराबर उल्टी मेथड प्रातिगामिक है, रिग्रेसिव है, कि जो कहा गया है वो ब्रह्म नहीं है, उससे भी परे ब्रह्म है। तो ये भी एक उपनिषद की मेथड्स है। तो ये 10 मेथड्स, ये 10 पद्धतियां इन उपनिषदों में ज्यादातर पाई जाती है। इनके आधार पर इस आत्मा के विषय में, ब्रह्म के विषय में चर्चा इन उपनिषदों में आती है। तो वैसे तो आज की घड़ी में जो उपनिषद है उनकी संख्या 250 से भी आगे चली गई है। जैसे जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल होते जा रहे हैं, उनका संशोधन होता जा रहा है, वैसे भी ये संख्या बढ़ती जा रही है। पर ये उपनिषद का फॉर्मेट इतना सुंदर है, इतना आकर्षक है, उनका
उनकी कॉपी अन्य संप्रदायों ने भी की है, जैसे कि इस्लामिक रिलीजन में अल्लोपनिषद की रचना अकबर के समय में की गई। पर्वतोपनिषद में जो जीसस ने अपने 12 शिष्यों को उपदेश किया है, उनका सार पर्वतोपनिषद या गिरियोपनिषद में किया गया है। तो उपनिषद, ये पद्धति, उपनिषद, ये ग्रंथ, साहित्य प्रकार, ये इतना जनप्रिय हो गया, जनमान्य हो गया कि उसका अनुकरण अन्य धर्मियों ने भी किया है। ये इसकी एक विशेषता है। ज्यादातर आत्मा के विषय में रहने वाले ये उपनिषद पुरुष, प्रजापति, प्राण या आत्मा, इन कीवर्ड्स पे चलते हैं। ये चार एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। वो अल्टीमेट हेलो, आवाज आ रहा है? सर परत sir. यहाँ सांगा. कमेंट, हेलो, सर विल यू प्लीज रिपीट इज 4 वर्ड्स? हाँ हाँ, पुरुष, प्रजापति एंड पुरुष, प्रजापति, आत्मा और प्राण, ये चार जो शब्द है वो उपनिषद के कीवर्ड्स है, कुंजी है, जिनके आधार पर उपनिषद डिकोड किए जा सकते हैं। तो अल्टीमेट बीइंग, अल्टीमेट रियलिटी कौन है, इसका विवरण देने के लिए ये चार शब्द, हर उपनिषद में ये चार नहीं आते। किसी एक उपनिषद में प्राण शब्द आ जाएगा, कहीं प्रजापति आ जाएगा, कहीं आत्मा आ जाएगा, तो कहीं पुरुष आ जाएगा। पर जिस सत्ता के बारे में कह रहे हैं वो एकमात्र सत्ता है, और वो परब्रह्म की सत्ता। तो ये जो उपनिषद है, इनका ये विषय विस्तार, एक बर्ड्स आई व्यू लेने का प्रयास हमने आज किया है। केवल स्थूल मात्र दर्शन है। जब हम एक एक उपनिषद का गंभीरता से चिंतन करेंगे तो इस विषय की गहराई हमें ज्यादा समझ में आ सकती है। आज यहाँ हम रुकते हैं। यहाँ एक कमेंट दिख रही है, जो 10 मेथड्स है वो रिपीट कर देंगे, वो कर देता हूं और रुकता हूं। उसके बाद अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ सूचित करना हो, अगर ये भी ऐड करना है, ऐसी आपकी सूचना हो, तो उन सभी का यहाँ विचार किया जा सकता है। मैं 10 मेथड्स रिपीट कर देता हूं। पहली जो पद्धति है, वो पद्धति इंग्लिश में उसका नाम है एनिग्मेटिक मेथड, जिसको उपमा पद्धति मराठी या हिंदी में कहा जा सकता है। दूसरी पद्धति है एफोरिस्टिक मेथड, जिसको सूत्र पद्धति भी कहा गया है। एटिमोलॉजिकल मेथड, जिसको व्युत्पत्ति या निर्वचन कहा गया है। दंत कथात्मक पद्धति, जिसको माइथोलॉजिकल मेथड भी कह सकते हैं। अगली पद्धति है सादृश्य पद्धति, जिसको एनालॉजिकल मेथड कहा जाता है। संवाद पद्धति, डायलेक्टिक मेथड। समन्वय पद्धति, सिंथेटिक मेथड। आत्मगत भाषण पद्धति, मोनोलॉजिक मेथड। समय सूचक पद्धति, एडहॉक मेथड। which sir please repeat? एडहॉक, ADHOC मेथड, समय सूचक पद्धति। और प्रातिगामिक मेथड, रिग्रेसिव मेथड। ये 10 पद्धतियां
ज्यादातर पाई जाती है। और भी कुछ पद्धतियां हैं, पर ये ज्यादातर विशेष रूप में आती है, इस कारण इनका विचार हमने किया। हेलो, रिग्रेसिव मेथड, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन रिग्रेसिव मेथड, ये कमेंट है। रिग्रेसिव मेथड का अर्थ ये है कि जो आपकी अवधारणा है, जो आपकी श्रद्धा है, उसको ठेस पहुंचाना, धक्का पहुंचाना। अब धक्का पहुंचाने में अपना स्वार्थ उस ऋषि का या वक्ता का नहीं है, उसमें निहित जो है ब्रह्म, वो ब्रह्म सभी तत्वों से, सभी कल्पनाओं से परे है। तो आपकी कल्पना में जो एक एक टुकड़े में ब्रह्म विभक्त हो गया है, उन टुकड़ों को तोड़कर उस परम सत्ता का ख्यापन करना, उसका विवरण करना, यही इस रिग्रेसिव मेथड की विशेषता है। जैसे कि कोई कहने लगे कि हाँ इंद्र ही ब्रह्म है, तो कह सकते हैं कि इंद्र ब्रह्म कैसे हो सकता? सर तुमचं म्यूट झालंय, ऐकू येत नाहीये, म्यूट झालंय. ओके ओके, सॉरी. हेलो. हाँ आता येते ऐकायला. हाँ हाँ, इंद्र ब्रह्म है, ऐसा अगर कहा जाए तो इंद्र ब्रह्म नहीं है ऐसा कहना। इंद्र ब्रह्म है ये सादृश्यात्मक पद्धति या उपमा पद्धति में उक्त हो जाता है। पर अगर कोई वही पकड़ के चले, पानी ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है, ये कोई पकड़ के चले, तो वो आकाश को ही पकड़ के रहेगा। रजनीश ओशो, उनका एक बहुत ही सुंदर वाक्य मुझे यहाँ याद आता है। रजनीश कहते हैं ईश्वर भी ब्रह्म नहीं हो सकता, ईश्वर को भी उस निर्गुण निर्विकार में छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि कोई अवधूत वृत्ति का सन्यासी महात्मा रहता है, वो पूरे कपड़े छोड़ देता है, अवधूत दिगंबर हो जाता है, वैसे ही कपड़ों को छोड़ना यानी अपनी कल्पनाओं को छोड़ना है। जब तक ये आवरण छोड़ नहीं देते, तब तक उस परम सत्य को, परम ज्ञान को आप उपलब्ध नहीं हो पाते। तो ये जो आवरण है, किसी आधार से, माध्यम से अगर आप ब्रह्म का ज्ञान करने की मंशा रखते हैं, तो वो आवरण भी झूठा ही है, केवल आवरण है, ये समझाना, ये रिग्रेसिव मेथड है। Pranam sir, this is Dr. Kruti Vajir. हाँ हेलो, Sir, can you hear me? हाँ बोलिए बोलिए। Sir, enigmatic method which you said, उपमा पद्धति, so हाँ। पंच महाभूतों का उदाहरण लेके शायद आपने समझाया उस चीज को, am I हाँ। correct? जैसे जल, Yes. आकाश सब एक जैसे, इस तरीके से आपने एक और पद्धति समझाई जहाँ पे संवाद पद्धति है, डायलॉजिस्टिक, आपने डायलॉगिक समथिंग मेथड बताया उसको, जिसका संवाद डायलेक्टिक, हाँ। सो उसमें शौनक ऋषि और जो सूत जी का संवाद होता है, जैसे पुराणों में हमने पढ़ा हुआ है, जिस तरीके से, जैसे महान सबसे पुरुषोत्तम पुराण है जो है शिव पुराण, तो 18 पुराणों में जो सबसे पुरुषोत्तम पुराण है, उसमें शौनक और सूत जी का संवाद है, तो वो यही पद्धति संवाद पद्धति के नाम से जानी जाती है। हाँ हाँ, बहुत सही। हमारी पूरी भारतीय दार्शनिक प्रणाली इसी संवादात्मक पद्धति पर आधारित है। बहुत अच्छा मुद्दा आपने प्रस्तुत किया कि एक तरह से ये उपनिषद, ये नाम ही संवादात्मक पद्धति का प्रारूप है। उपनिषद क्या है? गुरु के पास जाना, गुरु जो गुह्य ज्ञान, गूढ़ ज्ञान आपको दे देता है, वो सुनना, इसमें संवाद ही है। पुराण संवाद से ही उत्पन्न हुए। जैसे सूत और शौनक, ये सभी पुराणों के मूल श्रोता वक्ता है,
जी। पर उनके भी पीछे जैसे श्रीमद् भागवत पुराण के वक्ता शुक मुनि हैं, भगवान वेदव्यास के पुत्र, और परीक्षित राजा ये श्रोता है। विष्णु पुराण के पराशर ऋषि है। तो ऐसे वक्ता और श्रोता का जहां मिलाप हो जाता है और उनके संवाद में, उनके पूरे उस प्रसंग में जो ज्ञान की चर्चा हो जाती है वो एक तरह से उपनिषद ही है। उनका विषय अलग अलग रहता है। जैसे ब्रह्म के आधार पर की गई चर्चा ये वेदांत चर्चा है, और वो जितनी प्राचीन है उसको उपनिषद इस संज्ञा से उक्त किया जाता है। जब किसी ईश्वर के रूप के विशेष विषय में चर्चा है तो उसको पुराण कहा जाता है। जैसे भगवान विष्णु के विषय में है तो उसको विष्णु पुराण या भागवत पुराण कहेंगे। शिव के विषय में है उसको शिव पुराण कहेंगे। भगवती आदिशक्ति के विषय है तो उसको देवी भागवत पुराण कहेंगे। वैसे ही ये अवधारणा संवादात्मक पद्धति की बदलती जाती है और उसकी संज्ञाएं बदलती जाती है। पर ये भारतीय पद्धति का विशेष है कि हर एक ग्रंथ में संवाद आता है। मराठी में एक ग्रंथ है दासबोध नाम से। इस दासबोध में भी पहला जो अध्याय है उसमें समर्थ रामदास जी ने समास उसके अध्याय को कहते हैं। तो ग्रंथ नाम दासबोध, गुरु शिष्यांचा संवाद, यानी गुरु और शिष्य का संवाद, यही सभी ज्ञान की शाखाओं का मूल है। अगर संवाद नहीं है, अगर संभाषण नहीं है, तो किसी भी ज्ञान का विस्तार, विकास, यहाँ तक कि उद्गम भी नहीं हो सकता। तो ये मेथड है। धन्यवाद सर। और यम नियम अष्टांग योग जो है वो किस तरीके से उपनिषद से कनेक्टेड है सर? वेदांत में भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ने अधिकारों की चर्चा की गई है। इस वेदांत ज्ञान के लिए कौन अधिकारी, हु इज एलिजिबल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज अधिकार चतुष्टय या साधन चतुष्टय। देयर आर 4 fold साधनास which are इह अमूत्र फल भोग विराग, नित्यानित्य वस्तु विवेक, क्षमादि षट संपत और मुक्षुत्व। इसमें शम दम ये जो है ये यम नियम के रूप में हम ले सकते हैं। जो नियम के रूप में योग शास्त्र में अंग के रूप में स्वीकृत है, उनको वेदांत ने शम यानी अंतरिंद्रिय निग्रह, जो नियम है वो आंतरिंद्रिय मन के नियम, और दम ये शरीर के यम है। अगर ये आपको साध्य हो गए तो आप ब्रह्म की चर्चा में बैठने के लिए एलिजिबल हो गए। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं आरव शाह बोल रहा हूँ सर। मुझे आप षड दर्शन एक बार आप रिपीट कर सकते हो? एक्चुअली मेरा लिखना रह गया था। हाँ। षड दर्शन इस प्रकार है। षड दर्शनों में समान तंत्र जो दर्शन है उनकी जोड़ियां लगाई गई है। समान तंत्र यानी जिनकी प्रणाली या चर्चा एक प्रारूप में प्रस्तुत की गई है। जैसे सांख्य और योग, इनकी एक जोड़ी है, पर ये 2 दर्शन है। ओके। सांख्य दर्शन महात्मा या महर्षि कपिल का है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि के द्वारा सूत्रित है। तीसरा वैशेषिक दर्शन, इसके प्रणेता कणाद मुनि माने जाते हैं। न्याय दर्शन, इसके प्रणेता गौतम ऋषि कहे गए हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा, जिनके सूत्रों की रचना महर्षि जैमिनी ने की है। और अंतिम है वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा दर्शन, जिनकी सूत्रों की रचना भगवान वेदव्यास या बादरायण ने की है।
तो सर मतलब वेदांत में भी आपने 5 संप्रदाय दिए थे, तो मतलब जो आपने आचार्य दिए थे, आदि शंकराचार्य, माधवाचार्य, तो सर हाँ। वो सब भी मतलब इसके राइटर हैं, मतलब वेदांत दर्शन के? वो दे आर नॉट राइटर्स और ऑथर्स, दे आर इंटरप्रिटर्स और कमेंटेटर्स। उन्होंने रचना भाष्यों की है, दर्शन की नहीं की है। दर्शन तो मूल है, उस दर्शन का प्रस्तुतिकरण जो किया गया है, जैसे कि आत्मा के विषय में है, पर आत्मा कैसा है, इट इज ड्यूअल और नॉन ड्यूअल, ड्यूअलिटी और नॉन ड्यूअलिटी, अद्वैत या द्वैत, इस आधार पर उसका अपने अपने हिसाब से विवरण देना, ये वेदांतों के अग्रिम चरण में आने वाले इन संप्रदायों का मूल स्रोत है। सर सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा और वेदांत दर्शन, न्याय वैशेषिक, न्याय चौथा। तो सर दर्शन और उपनिषद में क्या मतलब ऐसे क्या रिलेशन क्या है? दर्शन ये तत्व ज्ञान के प्रकार है और उपनिषद ये तत्व ज्ञान के स्रोत है, मूल स्रोत है। दर्शन एक संप्रदाय हो सकता है, पर संप्रदाय की नींव, संप्रदाय की आधारशिला जो है वो उपनिषद है। थैंक यू सर। सर लास्ट थिंग, आप वो जो 10 मेजर उपनिषद एक बार बोल रहे थे, तो उसमें से मेरे 2 रह गए, तो आप एक बार प्लीज रिपीट कर सकते हो तो? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। सर आपने तैत्तिरीय के बाद क्या बोला? हाँ, तैत्तिरीय के बाद आपने क्या बोला? ऐतरेय, तैत्तिरीय के बाद ऐतरेय। ओके, थैंक यू सर। किसी को कोई सवाल नहीं है तो हम मैं पूछ सकता हूँ सवाल? मेरा नाम सुबोध पाटनकर। हेलो जी, बोलिए सुबोध जी। हाँ सर, ये पूछना था कि षड दर्शन का अध्ययन उपनिषदों के अध्ययन के पहले कितना आवश्यक है? वैसे तो आवश्यक नहीं है, क्योंकि इनमें कोई तरतम भाव या कार्य कारण भाव नहीं है। अच्छा। अगर दर्शन पढ़ना हो तो उपनिषद पढ़ने चाहिए, ये एक बात समझ में आ सकती है। अच्छा। पर दर्शन ये अलग चीज है। दर्शन ये एक पर्सपेक्टिव है, एक दृष्टा का। उन्होंने इस विश्व के पीछे रहने वाली जो व्यवस्था है, सत्ता है, उसके विषय में जो चिंतन किया है, उसके बारे में उनका चिंतन उसमें व्यक्त हुआ है, वो दर्शन है। और रही बात उपनिषद की, तो उपनिषद के सिद्धांतों के निकट वैसे तो केवल वेदांत दर्शन ही जाता है। बाकी के दर्शन और उपनिषदों में कहीं क्लैश भी शायद आ सकता। अच्छा, और एक बात पूछनी थी, तो मैं पूछ सकता हूँ? हेलो जी बोलिए। पूछना ये था कि आपने उपनिषद 108 गिनवाए, जिसमें कि 18 इम्पोर्टेंट है और उसमें भी 10 मोर इम्पोर्टेंट है। अब मेरा प्रश्न ये है कि इन 108 उपनिषदों में कहीं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित उपनिषद भी उपलब्ध है क्या? साक्षात ज्योतिष शास्त्र पर आधारित नहीं है, उसके संदर्भ बहुत मिल जाते हैं। जैसे कि अब ज्योतिष में आने वाला जो प्रण विचार है, योग विचार, उसके कुछ सूत्र आपको जरूर मिल जाएंगे उपनिषद में। पर जैसे कि एक मेरा प्रश्न एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी
पर कोई भी उपनिषद उपलब्ध नहीं है। हाँ। एस्ट्रोलॉजी में भी फल ज्योतिष, पंचस्कंद ज्योतिष ऐसा माना गया है, और उसमें फलित यानी इस ग्रह का इस कुंडली के इस भाव में स्थान होने से क्या फल हो जाता है। तो आज ज्योतिष शब्द से ये फल ज्योतिष ही प्रचलित है। तो फल ज्योतिष के विषय में वैसे तो कोई उपनिषद नहीं है। उस शास्त्र के विषय में स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की गई है, उपनिषदों में उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। अच्छा, उपनिषद का प्रयोजन इन सभी कल्पनाओं से परे उठना है, ना कि इनमें अटकना। नहीं, मैंने इसलिए पूछा था कि ज्योतिष शब्द का जो विवरण दिया जाता है उसमें देखना, दृश्य, अस्तित्व का दृश्य दर्शन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इस हिसाब से ब्रह्म ज्ञान में ज्योतिष का क्या स्थान हो सकता है, ये जानने की मेरी कोशिश थी। हाँ 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 हाँ, ज्योति ही ऐसा मूल शब्द ज्योतिष में है। ज्योति यानी परम ज्योति। जी हाँ। गीता में 15वें अध्याय में श्लोक प्रसिद्ध है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, अग्नि, विद्युत, ये जिसको आभासित नहीं कर पाते वो परम ज्योति ब्रह्म है। अच्छा, इसका अर्थ ही ये है कि ज्योतिष शास्त्र जो फल ज्योतिष के रूप में है वो कर्म के सिद्धांत जो ज्योतियों के नीचे है उनके विषय में चर्चा कर रहा है। पर ये जो आत्मा ब्रह्म है वो इन सभी ज्योतियों से भी परे है, कारण वो कर्म से भी परे है। तो ज्योतिष शास्त्र फल ज्योतिष ये कर्म से जुड़ा है और ब्रह्म नैष्कर्म्य रूप है, इस कारण उनका यहाँ कोई मेल नहीं दिखाया जा सकता। अच्छा, धन्यवाद सर। सर अब हम एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे और एंड करेंगे। लास्ट कल हम मिलने वाले हैं, तो ऐसा है कि अगर आपके पास और भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप रख दीजिएगा, कल हम उस पर थोड़ा चर्चा विचार कर सकते हैं। जी जी, ये सही रहेगा। श्रुति जी, आप लास्ट क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू मैम। सो सर मेरे 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप ब्रह्म सूत्र जो आपने बताए, आप एक बार क्या उसको रिपीट कर सकते हैं? ये फर्स्ट प्रश्न है, आप इसका आंसर कल भी दे सकते हैं। और जो मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि गीता में जो कन्वर्सेशन हुआ है कृष्ण जी और अर्जुन जी में रिगार्डिंग ब्रह्मा, तो ये भी क्या डायलॉग मेथड में ही इंक्लूड होता है? हाँ, of course it is dialogue between God and his devotee, tutor or mentor and his pupil. तो at the same time गीतामृतम, ये श्लोक मैंने पहले भी उद्धृत किया था। तो कृष्ण ने इन पूरे उपनिषदों का सार निकाल कर उस अर्जुन के मुख में प्रसाद के रूप में दे दी। हुआ यूं है कि प्रसंग बहुत अलग है। जहां अर्जुन का प्रश्न ये है, मुझे युद्ध करना है या नहीं, सही, हाँ। वो कह रहा है मुझे छोड़कर जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये अधर्म हो जाएगा। पर धर्म और अधर्म, कर्म और विकर्म, ये जो कंसेप्ट में अटका हुआ अर्जुन है वो तब तक बाहर नहीं निकल पाएगा जब तक वो कर्म से परे नहीं देख पाएगा। कर्म और विकर्म से परे देखने के लिए ब्रह्म क्या है, नैष्कर्म्य क्या है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। इस कारण भगवान कृष्ण ने उस ब्रह्म की चर्चा, जहां तक जो मॉडर्न थिंकर्स है, वेस्टर्न थिंकर्स है, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि वो प्रसंग उपयुक्त नहीं है ब्रह्म चर्चा के लिए। समरांगण में खड़े होकर ब्रह्म चर्चा करने का कोई वो स्थान ही नहीं है। वो प्रक्षिप्त है, वो गढ़ा गया है, नाम पर
सौंपा गया है, ऐसा भी कहना है। पर कर्म से परे जाने के लिए भगवान को नैष्कर्म्य की व्याख्या करनी पड़ी, और नैष्कर्म्य स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म तत्व का ज्ञापन करना पड़ा। तो इस संवादात्मक पद्धति से फिर से उपनिषद की ही पद्धति का अनुगमन भगवान ने किया। इसी कारण गीता को भी उपनिषद के रूप में भारतीय सभ्यता ने स्वीकारा है। धन्यवाद सर जी। और आपका जो पहला प्रश्न था प्रस्थानत्रयी के बारे में, वेदांत दर्शन की प्रस्थानत्रयी है भगवान वेदव्यास या बादरायण ने रचे हुए ब्रह्म सूत्र, जो 555 सूत्र है, 4 अध्याय में विभक्त है। ये न्याय प्रस्थान के रूप में माना गया है। उसके पहले जो प्रस्थान है वो स्मृति प्रस्थान है, वो भगवत गीता है। और सबसे पहला प्रस्थान, अग्रिम प्रस्थान जो है वो श्रुति प्रस्थान है, वो है उपनिषद। तो श्रुति प्रस्थान उपनिषद, स्मृति प्रस्थान भगवत गीता, और न्याय प्रस्थान ये है ब्रह्मसूत्र। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, 9:30 बज चुके हैं, तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे, सुबह 8 बजे कल से। सबको धन्यवाद। गोखले जी नमस्ते, धन्यवाद। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे। या थैंक यू सर, नमस्ते, बहुत मजा आया और बहुत कुछ जानने को भी मिला। थैंक यू सर। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद सर, खूप छान सेशन है। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर।